پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ تجارتی حجم $4 ارب تک بڑھانے کا عزم۔ دونوں ممالک کے درمیان معلومات کے تبادلے کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ نوجوانوں کے امور سے متعلق MOU اور سفارتی پاسپورٹ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کا بھی تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت میرزیایوف کی تقریب میں شرکت۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط اور روابط قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہترین تعلقات کو تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات میں بدلنے جا رہے ہیں۔ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ ازبک صدر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روشن مستقبل کے لیے دونوں ملکوں کی گفتگو اور معاہدے بہت اہم ہیں۔ دونوں دو طرفہ تجارتی حجم کو $2 ارب تک لے جائیں گے۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کل ایک روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت ولی عہد کو پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ ایوان صدر، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان اہم معاہدوں پر دستخط بھی متوقع۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے جنوبی کوریا کے سفیر پاک جون کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت۔ مراد علی شاہ نے جنوبی کوریا کو دھابے جی اسپیشل اکنامک زون میں صنعتیں لگانے کی پیشکش کر دی۔ کہا کہ بائی ٹیک انڈسٹری اور سیمی کنڈکٹرز، آٹو موبائل میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ کورین سرمایہ کاری کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ کورین سفیر کا کہنا ہے کہ سندھ میں جنوبی کوریا IT اور آٹو موبائل میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ FBI میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی مداخلت کو کم سے کم کر رہے ہیں۔ تمام تر توجہ ٹیکس جمع کرنے پر ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پشاور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ ٹیکس پالیسی کا اختیار FBR سے لے کر فائنانس ڈویژن منتقل کیا جا چکا ہے۔ بار بار کہہ چکا ہوں، نجی سیکٹر کو ملک کی قیادت کرنی ہے۔ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان بار کونسل نے احسن بھون کو ممبر جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ احسن بھون 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ احسن بھون جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کی جانب سے نمائندگی کریں گے۔ احسن بھون کو 14 ووٹ ملے۔ 4 ممبران نے مخالفت کی، 1 ممبر نے رائے ہی نہیں دی۔ 5 ججز متفق تھے کہ سویلینز کا خصوصی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سویلینز کے خلاف ٹرائل کورٹ پر اپیل پر سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ججز نے اضافی نوٹ نہیں بلکہ فیصلے لکھے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ عزیر بھنڈاری نے انٹرا کورٹ اپیل کا دائرہ اختیار محدود ہونے کا موقف اپنایا۔ عزیر بھنڈاری کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ عزیر بھنڈاری کا انحصار پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ پر تھا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کو راولپنڈی میں عسکری تنصیبات پر حملوں کے کیس کی سماعت۔ پنجاب حکومت کو رپورٹس جمع کرانے کی مہلت۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلیں دائر کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ کہا JIT رپورٹس جمع کرانا چاہتے ہیں، اس کی روشنی میں دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیے، مقدمہ منتقلی کی اپیلیں تو غیر مؤثر ہو چکی، مناسب ہوگا کہ کیس ٹرانسفر کرنے کی اپیلوں پر دوبارہ ہدایات لے کر آئیں۔ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ICC چیمپئنز ٹرافی میں سیمی فائنل کی دوڑ۔ انگلینڈ اور افغانستان کے درمیان کڑا مقابلہ جاری۔ ابتدائی 3 وکٹیں گرنے کے بعد افغان بلے باز ردھم میں آ گئے۔ ابراہیم زاردان کی شاندار سنچری افغانستان نے انگلینڈ کو 326 رنز کا ہدف دے دیا۔
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी, हेड कोच आकिब जावेद ने अजीब मंतक पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शिकस्त पर मद्दाहों से ज्यादा दुख खिलाड़ियों को होता है। खिलाड़ी अफसरदा हैं, हारने पर कौन मुतमईन होता है। जो हमारी टीम थी यही बेस्ट और मुमकिना टीम थी। ऐसा नहीं कि ये खिलाड़ी कुछ करके नहीं आए, हकीकत यह है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। भारत के खिलाफ 280 या 300 रन होते तो बेहतर होता। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत को कानून साजी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में फुल बेंच की केस की समाअत। कहते हैं 3 सूबों और कंटोनमेंट में जिद्दोजहद के बाद इंतखाबात कराए। सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम करके इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन और वज़रा की कारकर्दगी और फंड से मुताल्लिक बानी पीटीआई ने एहतिसाब कमेटी को मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। एहतिसाब कमेटी ने काबीना रकीन को तलब करना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की एहतिसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मई के पहले हफ्ते में काबीना रकीन की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म मिला है। तमाम वज़रा, मुशीर और मुआवनीन कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट्स रखेंगे। काबीना रकीन फंड्स और उनके इस्तेमाल से मुतल्लिक कमेटी को मालूमात देंगे। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पीका बिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दिया गया आज़ादी इजहार शदीद मुतासिर होगा। दरखास्त में पीका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की भी इस्तदा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज मुनशियात के 2 में से एक मुकदमे का 6 साल बाद चालान पेश। अदालत का मुलजिम को 18 मार्च को बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। चालान में बताया गया 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की करियर से अरमगान के नाम पर पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो वेट बरामद हुई। मुलजिम ने पार्सल अपने और वालिद के नाम मंगवाए थे। दीगर शरीक मुलजिमान में अब्दुल गफ्फार और एहतिशाम अहमद भी शामिल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम शहराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुलजिम शहराज का इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कत्ल का एतराफ। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ने वीड का नशा किया। नशे के बाद अरमगान और मुस्तफ़ा में बहस हुई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। घुटनों और सर पर चोट की वजह से मुस्तफ़ा जख्मी हुआ। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए, जहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डिफेंस के रिहायशियों का डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और स्टेशन कमांडर समेत दीगर आला हुकाम को खत। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अरमगान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया कि हालिया वाक़यात से रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक। अरमगान के वालिद से भी बंगला खाली करवाया जाए। बंगले से मुतअद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात हुए। गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। मुस्तफ़ा केस के बाद इलाका मकीनों का पुलिस को खत। डीआईजी साउथ असद रजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा 21 फरवरी को रिहायशियों का खत मौसूल हुआ। पुलिस दीगर इदारों की मदद से अरमगान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगले को खाली करवाएगी। डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद एक्शन लिया जाएगा। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतल्लिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी का मीसाक़े जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरियम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा पंजाब हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। दूसरी तरफ मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया।
पाक बहरिया ने सी गार्ड 2025 के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म निकायदार जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में मैरीटाइम सेक्टर से मुतल्लिक कौमी इदारों में हम आंगी की अहमियत को उजागर किया गया। मश्क JMICC में शामिल इदारों में बढ़ने और पुरएतमाद की गवाही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पाक बहरिया कानून नाफिज करने वाले इदारे, फिशिंग और शिपिंग के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमें यकजा होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुँचने के लिए CCD फौरी तौर पर हरकत में आएगा। CCD पंजाब भर में जराइम और मुजरिमों से मुतालिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। कराची के बिजली सार्फिन को कितना रिलीफ मिलेगा? बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेफ्रा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत आज होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने कमी की दरखास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर कर रखी है। मुल्क भर में एक ही रोज फर्जंदे इस्लाम रोजा रखेंगे। मरकजी ज़रूरत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कौम को नवीद सुना दी। कहते हैं रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए पेशावर में इजलास होगा। मुल्क भर में एक ही रोज रमजानुल मुबारक के आगाज की तैयारियां की जा रही हैं। एक ही रोज रोजा और ईद के लिए कामयाब कोशिश पर खुशी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और पायदार अमन पर जोर। आलमी बरादरी मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा कि इसराइल की मगरबी किनारे में जारियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी को जड़ से ख़त्म किया जाए। 7 ममालिक से 48 घंटों में मजीद 60 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट 7, ज़ायदुल मयाद क़याम पर 3 और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 पाकिस्तानी बेदखल। ओमान पहुंचने वाले 4 पाकिस्तानियों को इखराजात की रकम होने पर वापस भेज दिया गया। इराक में ज़ायदुल मयाद क़याम और पासपोर्ट गुम होने पर 9 पाकिस्तानी बेदखल हुए। इमारात में इमिग्रेशन इनकार और पासपोर्ट गुम होने पर 2 और 12 सजा याफ्ता डिपोर्ट हुए। गजा जंगबंदी मुआहदे पर रुकावट खत्म। इसराइल 600 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने पर तैयार हो गया। हमास 4 इसराइली मगवियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। इसराइली मीडिया की भी जंगबंदी डील की तस्दीक। फ़लस्तीनी कैदियों को आज रिहा करने का इम्कान। अमरीकी एलची स्टीव विटॉफ को कहते हैं कि इसराइली नुमाइंदे दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए रवाना हो चुके। मुज़ाकरात कायरा या दोहा और मिस्र में होंगे और कतर की मेज़बानी में किए जाएंगे। थाईलैंड में डबल डेकर बस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 18 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली बस थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से सोंगखिला सूबे जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। 40 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में फौजी अफसरान और एहलकार समेत आम शहरी भी शामिल। मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक सूडानी फौजी तैयारा खर्तूम के करीब तकनीकी खराबी के बायस आम शहरी के घर गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई इलाकों में बिजली भी मुनक़ता हो गई। यूक्रेनी सदर मादियात का मुआहदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जुम्मे को मिलने आ रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा यूक्रेनी सदर से खुले दिल से मिलूंगा। यूक्रेन अमेरिकी इत्तेहाद $350 बिलियन और हथियारों की बिना पर बरकरार है। यूक्रेनी अवाम को जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमेरिकी असलहे और आलात से जंग लड़ी जो अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था।
امریکہ کا یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یوکرین کے صدر معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا کہ امریکی صدر سرحدی معاملات پر اپنے احکامات پر قائم ہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گوانتانامو بے جیل بھیجا جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا دھواں دھار سپیل، مختلف حادثات میں بہن بھائی سمیت 8 افراد جاں بحق۔ کرک میں مکان کی چھت گرنے سے 2 کم سن بہن بھائی جاں بحق ہوئے۔ وادی نیلم میں 3 افراد برفانی تودے تلے دب گئے۔ اٹک میں پھسلن کے باعث بس کھائی میں جا گری، 3 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ پشاور میں کوہاٹ روڈ پر مکان کی چھت تلے دب کر 4 بچے زخمی ہو گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برفباری جاری۔ بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں موجود۔ کوئٹہ، قلات اور زیارت سمیت شمالی اضلاع میں بارش اور برفباری متوقع۔ مختلف شہروں میں سردی میں مزید اضافہ۔ کوئٹہ میں 7 ملی میٹر اور قلات میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ چمن میں آندھی سے گھروں کی دیواریں اور بجلی کے ٹاور گر گئے۔ معلم جبہ، کالام اور مہڈن میں بارش اور برفباری، ہر سو سفیدی چھا گئی۔ اور بھارت کے ایک ہی وینیو پر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز، آسٹریلوی فاسٹ بالر پیٹ کمنس کی کڑی تنقید، کہا چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی ٹیم کو فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک ہی وینیو پر کھیلنے کی وجہ سے بھارت کو ٹورنامنٹ میں فائدہ مل رہا ہے۔ بھارت ٹورنامنٹ میں پاکستان میں نہ آنے کے باعث میچز دبئی میں کھیل رہا ہے۔